જય સચન ભરતભાઈ શ્રી, તમે ત્રિમંત્ર ફોલો કરજો. તમે ક્યાં છે? અનમ્યુટ કરવું પડશે. કોણ ફોલો કરવાનું છે? ઓકે. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિયંતાણ, નમો નમો સિદ્ધાણમ, અરિયંત, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો નમો વજ્જાય, વજ્ર, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોહે સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુકારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપનાસણો, તવ પાવપણાશણો, મંગલાણંચ સવેસેમ, મંગલાણમ ચ સવેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. અઢમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગૌરાંગભાઈ, હાજી. આ મેં તમને જે મોકલું ને આ કલર વાળું મૂકો, આ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ નહીં હા. મૂકો. મેં તો પેલા બી કીધું છે, આ નહીં મૂકો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં છેલ્લા કેટલા સત્સંગમાં છે ને ભૂલ અને દોષ ઉપરની વાત તો વધારે થાય છે, તો એને કનેક્ટેડ પદ છે. ઓકે. ગૌરંગભાઈ મળ્યું? હા, મળી ગઈ જસ્ટ. ઓકે 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 ઓકે. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અવાજ આવે છે? અવાજ આવે છે બરાબર? કટ થાય છે થાય છે. ભરતભાઈ. હા, તો વિડીયો બંધ કરી દઉં છું. થોડું નેટ નો ઇસ્યુ લાગે છે. ગૌરંગભાઈ, આવે છે અવાજ તમને બરાબર? હા, આવે છે બરાબર. ઓકે, હવે બરાબર છે. પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં કટ થતો હતો, હવે ઓકે છે. વિભૂતિબેન? હા, બરાબર છે. ઓકે ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બીજાના દોષ દેખ્યાથી સકળ સંસાર માર્ગ ઉભો. બીજાના દોષ દેખ્યાથી સકળ સંસાર માર્ગ યુભો. જો દોષો ખુદ ના દેખ્યા તો નીકળે મોક્ષ માર્ગ સીધો. જો દોષો ખુદ ના દેખ્યા તો નીકળે મોક્ષ માર્ગે સીધો. બીજાનું આવડું જોયાથી કરમ બંધન કુપડ ફૂટે. બીજાનું આવડું જોયાથી કરમ બંધન કુપડ ફૂટે. ભૂલો પોતાની દેખ્યાથી કરમ ફળ નિર્જરી છૂટે. ભૂલો પોતાની દેખ્યાથી કરમ ફળને જરી છૂટે. પોતાને દુઃખ પરિણામે
तो जाणो आर्त ध्यान थयूं। પોતાને દુઃખ પરિણામે તો જાણો આર્ત ધ્યાન થયું. કોઈને દુઃખ થયું તુજથી પરિણામ રૌદ્ર ધ્યાન થયું. કોઈને દુઃખ થયું તુજથી પરિણામ રૌદ્ર ધ્યાન થયું. વધે સંસાર અધર્મે બેધ્યાનો આર્ત રૌદ્ર થકી. વધે સંસાર અધર્મે બેધ્યાનો આર્ત રૌદ્ર થકી. ઘટે સંસાર સદ્ધર્મે પરિણમ ધર્મ ધ્યાન પછી. ઘટે સંસાર સદ્ધર્મે પરિણમ ધર્મ ધ્યાન પછી. જગતની ભૌતિકી અડચણ મળે છે આર્ત રૌદ્રીને. જગતની ભૌતિકી અડચણ મળે છે આર્ત રૌદ્રીને. જો સુખને પણ બનાવ્યું દુઃખ મહિલા ક્લેશ રોપીને. જો સુખને પણ બનાવ્યું દુઃખ મહિલા ક્લેશ રોપીને. ખરા સંયમ પરિણામે ન થાય આર્ત રૌદ્રા ધ્યાન. ખરા સંયમ પરિણામે ન થાય આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન. ધર્મ ધ્યાનીને દિલ વૈભવ અને સંતોષ શુભ પરિણામ. ધર્મ ધ્યાનીને દિલ વૈભવ અને સંતોષ શુભ પરિણામ. નિમિત્ત પર આવે નહીં દ્રોણા ન મારે ધક્કો સંયોગને. નિમિત્ત પર આવે નહીં દ્રોણા ન મારે ધક્કો સંયોગને. વ્યવસ્થિત કરતા છે સમજ્યો ન આંતરે ગમતા સંયોગોને. વ્યવસ્થિત કરતા છે સમજ્યું ન આત્રે ગમતા સંયોગોને. નથી ખાવાનું આજે તો કરે ચિંતા તે આરત ધ્યાન. નથી ખાવાનું આજે તો કરે ચિંતા તે આરત ધ્યાન. વરસ દાડા પછીનું શું કરે ચિંતા તે રૌદ્રજ ધ્યાન. વરસ દાડા પછીનો સો કરે ચિંતા તે રૌદ્રજ ધ્યાન. પોતાના દુઃખ ને રડતો રહે છે તેને આત ધ્યાન મહી. પોતાના દુઃખ નિરડતો રહે છે તેને આર્ત ધ્યાન મહી. બીજાને દુઃખ ઉભા કરતા પીડાશે રૌદ્ર ધ્યાન મહી. બીજાને દુઃખ ઉભા કરતા
पीड़ा से रौद्र ध्यान मही ન જાણી જાત પોતાની ત્યાં સુધી ધર્મ ધ્યાન ખપે. न जानी जात पोतानी ત્યાં સુધી ધર્મ ધ્યાન ખપે. પરોક્ષા મોક્ષના કારણ જે સેવ્યા ફળશે સન્મુખે. પરોક્ષા મોક્ષના કારણ જે સેવ્યા ફળ સે સન્મુખે. જે દેહે ધર્મ ધ્યાને સ્થિત નકી તે આત્મ શુકલ ધ્યાન. જે દેહે ધર્મ ધ્યાને સ્થિત નક્કી તે આત્મ સુકલ ધ્યાન. અહો પ્રત્યક્ષ કારણ મોક્ષ બસમ કર બાળો ચિકણા ધ્યાન. અહો પ્રત્યક્ષ કારણ મોક્ષ ભસમ કર બાળ ચિકણા ધ્યાન. ભસમ કર બાળો 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 ચિકણા ધ્યાન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય હા, જય સચ્ચિદાનંદ. સચિન. જય સચ્ચિદાનંદ કલ્યાણજી. બસ આ તો બહુ સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી પદ છે. બીજું કંઈ કહેવા જેવું છે નહીં આમાં. આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન, પોતાના દોષ બીજાના દોષ જોઈએ તો કર્મ બીજ પડે છે. આપણા માટે કર્મ પેન્ડિંગ રહે છે. દ્રષ્ટિ નિર્મળ કરવાની, પોતાનું દેખે તો નિજરા થઈ શકે છે કર્મની. પોતાને દુઃખ આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન આપણને તો હવે રહેતું નથી. પોતાને દુઃખ આપે આર્ત ધ્યાન, બીજાને દુઃખ આપે તે રૌદ્ર ધ્યાન. હવે આપણે પોતે કરતા રહ્યા નહીં એટલે આપણા માટે તો આર્ત ધ્યાન તો ના કહેવાય, પણ સફોકેશન, ગુંગળામણ થાય, આપણું સુખ જતું રહે. બીજાને દુઃખ આપો એટલે એટલું આપણને પછી આપણને જ દુઃખ આવે. અને આજ્ઞા પાડો એટલો ભાગ ધર્મ ધ્યાન છે. અને એનાથી જ બધા કર્મો ખપે કે સંસાર આપણો હાથને. જગતની ભૌતિક અડચણ મળે છે અર્થ ધ્યાને, જો સુખ ને પણ બનાવ્યું દુઃખ મહિલા ક્લેશ રોપીને. એટલે બધું સારું હોય, સુખ હોય તો બી મારી પાસે આ નથી એમ કરીને દુઃખી થાય. 2 બેડરૂમ પોતાનો છે ને 4 બેડરૂમ નો ફ્લેટ જોઈને દુઃખી થાય એટલે ક્લેશ રોપે છે. હવે મારું કેમ વધે, હું કેમ આગળ જાઉં. એટલે સારું હોવા છતાં ખોટી કમ્પેરિઝન થી દુઃખ રોપે છે. ખરા સંયમ પરિણામે ન થાય આર્ત રૌદ્ર ધ્યાન. હવે આજ મોક્ષ માર્ગનો મોટો પાયો ત્યાં સંયમ પરિણામે. યસ. મોક્ષ માર્ગનો પાયો સંયમ છે. ક્રોધ માન માયા લોભામાં સંયમ, આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ના થવા દે. કલ્યાણજી, લોકો સંસારમાં છે ને ક્રમિક માર્ગમાં સંયમ કોને કે આ ત્યાગી દીધું, આ ત્યાગી દીધું, આ ત્યાગી દીધું, આ ત્યાગી દીધું, એને સંયમ કે છે. હા, સમજણ એવી છે. પણ દાદા ભગવાને જે આ સમજણ આપી છે અલૌકિક સમજણ છે. ફિટ થઈ ગઈ, કામ થઈ ગયું. હા, એટલે એ લોકો એમ જ 2 ભાગ પાડે છે. અમે સંયમી સાધુ સાધ્વીઓ અને તમે સંસારી એમ. હા, એ લોકો ત્યાગને સંયમ માને છે. અને દાદા ભગવાનની ભાષાની ડેફિનેશન કશાયના સંયમ, કશાય ઉભો થાય અને ત્યારે સંયમ પરિણામ રાખે એને સંયમ. અને મહાત્માઓ માટે અક્રમમાં થોડુંક એક સ્ટેપ થોડું વધારે કીધું કે પેલા અંદર સંયમ પરિણામ થશે, બહાર ના થાય. બહાર ભલે ક્રોધ થઈ ગયો પણ અંદર ખેદ રહેશે, આ ખોટું, અંદર ખટકો રહે, પછી અંદર ખટકો રહે. હા, એટલે એના વિરુદ્ધમાં બેસીએ છીએ કે આ ખોટું થયું, એટલે એ આંતરિક સંયમ છે. અને પછી ધીમે ધીમે બહાર સંયમ આવતો છે. બરોબર. આપણા માટે એ સંયમની વ્યાખ્યા રહે છે. અને સંયમમાં આવી જ ગયા છે પણ વિશેષ સંયમમાં આવવાનું બાકી રહે. કરેક્ટ. નિમિત્ત પર ના આવે, ઘૃણા ન મારે, ધક્કો સંયોગને વ્યવસ્થિત કરતા છે, સમજ્યા ન આતરે ગમતા સંયોગ. એટલે દુઃખ આપનાર નિમિત્ત હોય તો એના પર ઘૃણા ના કરે, ના ગમતા સંયોગોને ધક્કા ના મારે. હવે ક્યારે પૂરું થાય?
અને વ્યવસ્થિત કરતા છે એમ સમજી લે તો ગમતા સંયોગોને પણ ના આતરે. એટલે કે ભાઈ હવે મારું ગમતું સંયોગ હોય, ગમતી વ્યક્તિ હોય એ જાય નહીં, મારું ઓછું ના થાય, એ પણ આખું એક આગળની દશા છે. દુઃખને ધક્કા નહીં મારવા અને સુખને છોટવું બી નહીં, બંનેને સંયોગ રૂપે જોઈ. એટલે આ દેહાતી દશા સૂચવે છે. જેટલું દેહથી છૂટા પડશું એટલું સંયોગોને વળગીને રહે. નથી થવાનું આજે તો કરે ચિંતા તે આર્ત ધ્યાન, વરસ દાડા પછીને શું તે કરે તે રૌદ્ર ધ્યાન. એટલે આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન નું આખું ઓલું બતાવે છે. ચિંતા કરે, પોતાને દુઃખ આપે તે આર્ત ધ્યાન, અને ભવિષ્ય માટે શું થશે એ જ રૌદ્ર ધ્યાન કહેવા માંગે છે. પોતાના દુઃખને રડતો રહે છે તેને આર્ત ધ્યાનમય, બીજાને દુઃખ ઉભા કરતા પીડાશે રૌદ્ર ધ્યાનમય. બસ આ તો એ જ વસ્તુ આવી ગઈ, રિપીટ જ છે. પોતાને દુઃખ ને બીજાને દુઃખ. ન જાણીતી જાત પોતાની ત્યાં સુધી ધર્મ ધ્યાન ખપે. એટલે પોતાનું સ્વરૂપ ભાન થયું નથી ત્યાં સુધી ધર્મ ધ્યાન એટલે કે શુભ ક્રિયાઓ કરે, ભગવાનનું આરાધન કરે, વિતરાગોનું આરાધન, ભક્તિ, નામ સ્મરણ, પૂજા પાઠ, એ બધું પરોક્ષ અને સેવા ને બધું પરોપકાર બી. પરોક્ષ મોક્ષના કારણે જ સેવ્યા ફળશે સન્મુખ. એટલે જેમ જેમ મોક્ષના કારણો સેવાય તેમ તેમ મોક્ષ સન્મુખ આવે એમ કરીને કે મારે હવે મોક્ષે જ જવું છે એ ભાવનાથી વ્યવહારના ધર્મ ધ્યાન, વ્યવહારની બધી ક્રિયા કરે છે તો એને સામેથી મોક્ષના નિમિત્તો મળી આવે. જેની પાસે આત્મજ્ઞાન કે સ્વરૂપનું ભાન નથી. જે દેહે ધર્મ ધ્યાન સ્થિત નક્કી તે આત્મે શુક્લ ધ્યાન, અહો પ્રત્યક્ષ કારણ મોક્ષ ભસમ કર બાળો ચીકણા ધ્યાન. બસ એટલે કે આપણને બધાને બહાર ધર્મ ધ્યાન ને અંદર શુક્લ ધ્યાન રહે મહાત્માઓને આત્મા, અને પ્રત્યક્ષ કારણ મોક્ષ ભસમ કરો. એટલે કે એ ભગવાન પાસે પ્રત્યક્ષ મોક્ષ મળ્યો છે, હવે અંદરના ચીકણા બધા જે કર્મો છે બાળી નાખો, જેથી કરીને નિરંતર ધર્મ ધ્યાન ને શુક્લ ધ્યાન રહેવાય. આવું થોડુંક મને સમજાય. બરાબર. ઉપજાવે સંયમ પરિણામ, હર્ષ ને શોકની વિભાવાવસ્થે, હાજર થયું તેજ જ્ઞાન, ઉપજાવે સંયમ પરિણામ. સરસ સરસ. જય સચિદાનંદ કુલેનાજી. પ્રશ્ન લઈએ આગળ. હા, સુધીરભાઈ નો લઈ લો. હા, જય સચિદાનંદ સુધીરભાઈ. सुबीर जी। जय सच्चिदानंद पुलिनंद जी, जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं। पुलिनंद जी, मेरा एक अनुभव बोलो और सेल्फ असेसमेंट बोलो, तो मैंने देखा जब भी कोई भारी संयोग आता है और मतलब उसमें भोगवटा ज्यादा आएगा ऐसा एक्सपेक्टेड है, तो उसी टाइम पे आपने सामने वाले को निमित्त और निर्दोष देखते और खुद को दोषी देखते, उसी टाइम पे तो मालूम नहीं पड़ता क्या दोष किया है पहले, किसका काम के लिए मतलब ये रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इतना भी कर लेते तो भी वो जो भोगवटा जो है ना उसका असर कम पड़ता है। तो इसका लॉजिक क्या है और ये कैसे मतलब उसका आप एक्सप्लेन करोगे? ये मेरा एक नहीं मतलब बहुत सारा संजोगों में मैंने प्रयोग करके देखा है और उसका मेरे को लाभ मिला हुआ है। सामने वाले को निर्दोष देख के अपना भोगवटा कम हो जाता है। हाँ, सामने वाले को निर्दोष देखते हैं और क्या बोलते हैं अपने को दोषी देखते हैं, मतलब सामने वही एक ही होगा ना, कोई भी एक दोषी है तो सामने वाले को निर्दोष देखते हैं, खुद को दोषी देखते हैं। दोष तो अपने को मालूम नहीं पड़ता उस टाइम पे किस दोष का फल आया हुआ है, लेकिन वो एक करके भगवान मतलब दादा भगवान से हमने प्रार्थना कर लेते हैं जे संजोग से मेरे को बाहर निकालो, शक्ति दो, तो काफी मतलब उसमें सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। हाँ, आए तो बहुत बड़ा संजोग, ऐसा छोटा मोटा संजोग की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा संजोग की बात। हाँ, बड़े संजोग में जब सामने वाले को हम निर्दोष देखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली खुद का दोष है वो तो आ जाता है, सिक्के की दूसरी बाजू होता है। हाँ बराबर, वही है, अदर साइड ऑफ द सेम कॉइन। राइट। फिर
उसको जब हम निर्दोष देखते हैं तो बदले की भावना नहीं आती है। और राइट। इस संजोग से निकलने का वितराग उपाय क्या है वो हम सोचते हैं। चलो हमने गलती की है, अभी आया है, अभी करने का क्या। सो एक तो हो सकता है खुद का अगर दोष दिखे तो सेल्फ करेक्शन यानी प्रतिक्रमण है, अगर दोष दिखता है तो। और दोष नहीं दिखता है तो फिर बस इसमें से निकलने की शक्ति जब हम दादा को मांगते हैं तो हम द्वेष रहित वितरागता पूर्वक, ना उसको दुख ना मुझे दुख, इस प्रकार की एक भावना इनबिल्ट व्यक्त हो जाती है। राइट। इनबिल्ट हम ये इसको फाइल समझते हैं कि ये फाइल है, अभी संभव से निकालो, और अभी इसमें से हमको रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए दादा भगवान को याद करते हैं कि हे दादा आप इसमें से रास्ता निकालें। कि मेरे पास इतनी सूझ या शक्ति नहीं है, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ या आपके पास शक्ति मांगता हूँ। सो उससे बेसिकली व्हाट आई फील इज हमारी जो बुद्धि है ना वो बंद हो जाती है, विपरीत बुद्धि हो जाती है। बिकॉज विपरीत बुद्धि का नेतर क्या होगा, सपोजिंग दादा नहीं थे हमारे पास, अगर दादा नहीं होते फॉर एग्जाम्पल ज्ञान में, तो सॉल्यूशन हर इंसान निकलता ही है। तो फिर या तो फिर उसको जो समझ में आता है वो करेगा, या तो फिर वो बुद्धि से करेगा, भाई इसने ऐसा किया है तो मैं ऐसा करूं। उसको ढूंढने के लिए बुद्धि के प्रकाश का उपयोग करेगा। राइट। और जब बुद्धि के प्रकाश का उपयोग होता है तो फिर वो हिंसक उपाय होने के चांसेस रहते हैं। उसको दिखा दूं, नेक्स्ट टाइम ऐसा करूं, इसके साथ अभी नहीं बात करने का है, उसके साथ बात करूं। वो राग द्वेष वाले सॉल्यूशंस आएंगे, हिंसक यानी किसी को दुख होने वाले सॉल्यूशंस आ सकते हैं। द्वेष बदले वाले एक्शन रिएक्शन रिटेलिएशन वाले सॉल्यूशंस आ सकते हैं, जिसमें मेरा एक्शन रिटेलिएशन है सर, यू नो। सो बुद्धि के सॉल्यूशंस, बहुत स्वच्छ बुद्धि है तो अलग बात है, बट ऑन एन एवरेज स्वच्छ बुद्धि की संभावना कम है। तो बुद्धि के सॉल्यूशंस इस प्रकार के होने के वजह से, राग द्वेष के सॉल्यूशंस होने के वजह से शांति तो मिलती नहीं, सॉल्यूशन आए या ना आए, एवरलास्टिंग सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो जब हम दादा भगवान को प्रे करते हैं कि इसमें से निकालो, इसका मतलब हम बुद्धि को साइड में रख देते हैं। मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो कैपेसिटी है इस सॉल्यूशन की, वो मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि वो वितराग सॉल्यूशन देने वाली नहीं है। अगर भगवान को अप्रोच करते हैं तो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग इज हम अपनी बुद्धि को साइड में रख देते हैं। तो राग द्वेष दोषित करता, दिखा दूंगा, बदला, सब बाजू में चला जाता है। वो बाजू में तो आपको शांति मिलती है, पॉइंट नंबर 1। और दादा को अप्रोच करते हैं तो अंदर से दादा का एक तो क्या होगा, थोड़ी चित शुद्ध होगी तो वितराग सॉल्यूशंस निकलेंगे। भाई तेरा ये कॉज इफेक्ट अभी संभव से निकाल लिया, समथिंग विल हैपन। समथिंग में एक दो तीन चीज हो सकती, एक तो या हमें कुछ सूझ पड़ेगी कि ऐसा कर, या दादा भगवान की कृपा से कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, नैमित्तिक व्यवहार में कुछ फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं। द बिगेस्ट थिंग इज हम अबुद्ध दशा की ओर जाते हैं, हमने बुद्धि का एक भाग यूज नहीं किया वहां पे। तो जो पीस मिलता है, जो शांति मिलती है, वो बिकॉज ऑफ नॉन यूजिंग द बुद्धि। और जब भी जो भी अभी हमने पद गाया ना, तो उसमें शांत भाव से कर्म की निर्जरा हो जाती है। राइट। बेसिकली कर्म को तो रियली स्पीकिंग, वेरी आइडियली स्पीकिंग, ज्ञाता दृष्टा रह के निर्जरा करनी है। जिसको भोगवट आ रहा है उसको देखने का है। अभी हमारा अहंकार की डिस्चार्ज, अहंकार की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने शांति से वो सफरिंग को सहन कर सके। इसलिए सॉल्यूशन चाहिए, है ना। वो गर्मी सहन नहीं होती है तो पंखा चाहिए, ऐसा है। राइट। सो अभी पंखा लेना तो कौन सा लेना, तो दादा का लेते हैं, उनके ज्ञान का लेते हैं, उनकी कृपा का लेते हैं। इसलिए सरेंडरिंग टू दादा इज अ वे ऑफ गेटिंग, एक प्रकार की एक मेंटल स्टेमिना आ जाती है, एक दुख को सहन करने की शक्ति आती है, या समय पसार करने की शक्ति आती है। जो प्रतिकूल संयोग है, जो सफरिंग का संयोग है, उसमें हमारा बुद्धि एब्सेंट हो जाती है। दादा को प्रे करते हैं, इसलिए मन साइलेंट हो जाता है, मन प्रार्थना में लग गया है।
इसलिए जब मन शांत है, बुद्धि शांत है, तो एक अंदर से शांति मिलती है और कुदरत की तरह से उपाय मिलता है या उदय में से हम पास हो जाते हैं. राइट. सो दिस इज द आई थिंक द मैकेनिक्स बिहाइंड जो आपने बोला ना कि जो मुझे बहुत अनुभव हुआ और शांति मिली, तो व्हाट इज द थिंग दैट इज ऑपरेटिंग बिहाइंड द सीन्स, वो क्या रहा है. तो राइट. राइट. हाँ, मुझे लगता है कि हमारा बेसिकली अंतस्करण शांत है ना, तो हमारा अंतस्करण हमको जो दुख देता है वो बंद हो जाता है. एंड हमको एक धीरज आती है शांति से निकालने की. एंड एक स्टेप आगे परहैप्स जब दादा को प्रे करते हैं, तो मैं फिर प्रे करने के बाद पॉसिबिलिटीज है कि मैं शुद्धात्माओं का रटन करेंगे या कुछ असिंजय करो बोलेंगे. सो हम वी आर इन द प्रोसेस, यानी जो टाइम पीरियड है मेरे सफरिंग का, एक प्रतिकूल संयोग आया, मैंने दादा को प्रे किया और सॉल्यूशन आया, सफरिंग निकल गया, उसको जो टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम में फिर मैं आत्मा का कुछ करता हूँ. आई एम एंकरिंग माई सेल्फ इन आत्मा. राइट. डूइंग सिद्ध स्तुति, कीर्तन, भक्ति और व्हाटएवर. मैं राइट. शुद्धात्मा हूँ, मैं मन में अलग शुद्धात्मा हूँ, ये फाइल नंबर 1 तेरा आया है, ये मेरा नहीं है. ऐसा करके हम सेपरेट का शरीर से सेपरेट होने का पुरुषार्थ में आ जाते हैं. हमारी जागृति मूल स्थान पे हम लाते हैं. मैं शुद्धात्मा. सो उसका फिर एक आनंद रहता है और उसकी एक स्थिरता रहती है कि ये जो हो रहा है वो पड़ोसी पे हो रहा है, एंड वेट एंड वॉच में रहने का है. सो 2 थिंग्स हैपन. अंतस्करण में मन और बुद्धि शांत होते हैं और हम स्वयं उद्गल की सीट में से आत्मा की सीट पे बैठते हैं. 2 चीजें जैसे प्रतिकूल संयोग में स्थिरता भी आती है और पसार भी निकल जाती है उसमें से. आपने जो बोला उसको सम अप करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसा एक तो ग्रॉस लेवल में जो अंतस्करण जो उथल पाथल करता है, जब भारी संयोग आता है, पर्टिकुलरली बुद्धि जो अस्थिर रहता है, कुछ ना कुछ करने का सोचता है, कुछ करने जाता है, वो बंद हो जाता है जब हम ये सोचता है जो खुद का ही है. और दूसरा, वो जब हम स्वीकार कर लेते हैं जो हमारा ये दोस्त के हिसाब से ये अपन को भुगता आया हुआ, तो उस टाइम पे मेरा और फर्दर अनुभव ये है जो काफी कुछ सुलझ जाता है. मतलब कुदरत भी हमको हेल्प करता है. ये दादा भगवान को सौंपता मीन्स कुदरत भी हमको हेल्प करता है उसी टाइम पे उस संजोग से निकालने के लिए. तो वो अनएक्सपेक्टेडली निकल भी जाता है. हम बहुत मतलब जल्दी बोलो बा कुछ सहज रीते निकल भी जाता है बारे संजोग. तो ये मेरा अनुभव के साथ आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने इसके हिसाब से ले रहा हूँ. बराबर है. मैं कहा ना, कृपा काम कर सकती है. हम लाइटली निकल सकते हैं बिकॉज उनकी हाजिरी में, दादा भगवान की हाजिरी में, जब मुश्किली में दादा भगवान को अप्रोच करते थे और कहते दादा ऐसा ऐसा व्यवहार में बड़ी मुश्किल आई है, तो दादा भगवान विधि करते थे, विच वॉज उनके शब्दों में वो यथा योग्य देवी देवता को विनंती करते थे कि भाई इसकी समस्या का आप रास्ता निकाले. So something like that is still working. दादा को प्रार्थना करते हैं तो समवेयर सम डिवाइन ग्रेस, कोई देवी देवता जी का इसमें सहायता हो सकता है. दादा भगवान का खुद का हो सकता है, वो सब हमको मालूम नहीं है. जो भी है वो डिवाइन ग्रेस है, जो भी है वो काम कर रही है. जल्दी सूझने वाला भाग, इट्स पॉसिबल. देवी शक्ति ऐसी चीज है, देवी शक्ति एक ऐसी चीज है मेरे अनुभव में, वो चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं. When the Lord is, जब देव या देवी खुश है या उनको चाहते कि निकालना है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं. यानी हमको मुश्किल से निकाल सकते, कुछ भी कर सकते हैं. नॉट इन द पोजीशन कि हमको बाहर से बाहर संजोगों में से निकाल सकते. Right, right. In fact, today now, Dada Bongsa himself may be doing it. I don't know. वो खुद जहाँ भी है, जो भी है, अभी I don't want to get into the detailing of that, but वो खुद भी अपनी यथा योग्य जो भी है कृपा या शक्ति का यूज करके हमको इसमें रिलीफ दे सकते हैं. 100% रिलीफ दे सकते हैं. मैं तो आई एम डेड कन्विंस्ड इट वर्क्स.
बराबर बराबर। अच्छा, हमको हाँ, इसका कॉन्ट्रेरी मैं बोल रहा हूँ। जो मैंने कोई भी संजोग में, सॉरी, सत्संग में मैंने सुना है, अगर मैं गलत सुना तो अलग बात है जी। हम जितना दफे ये दादा भगवान को व्यवहार के सुलझने के लिए हम शक्ति मांगते, उतना आप निश्चय की तरफ आप काचा पड़ते हो। तो ये मेरे को थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी लगता है। तो इसमें मेरे को समझने में भी गलत हो सकता है। तो इसको भी कुछ आप ले सकते हो क्या, कुछ बोल सकते हो इसमें? in a way, yes, you see, दादा भगवान सेड कि छोटे मोटे व्यवहार के चीज के लिए मेरे पास मत आना, तो अपने आप ध्यान से निकाल देना। वो रिलेटिव मैटर्स में डोंट यूज डिवाइन ग्रेस। बहुत ही ज्यादा विशेष या ज्यादा बड़ा हो तो अप्रोच कर। दैट इज ट्रू। हमारी पुण्य है फिर, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इन अ वे यस, हो सके तो अपने आप इसको रिजॉल्व कर, तप है या जो भी है। बट समथिंग बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड समथिंग वेरी मेजर, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क, बिकॉज वो कैपेसिटी बिल्डअप नहीं हुई है ना आत्मा में रहने की। हाँ, अपना स्थिति जो है, जो आप बोल रहे हैं बिल्डअप नहीं हुआ, अपना स्थिति तो वही, मतलब बिल्डअप हुआ ही नहीं अभी तक, उतना स्टेज तक हम पहुंचा नहीं। वो इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी में हम यूज करना चाहिए। जैसे कि हाँ, ट्रेन में से मेरा रुमाल गिर गया तो मैं वो चेन पुलिंग नहीं करना चाहिए। कुछ राइट मेरा कोई आदमी गिर रहा है तो चेन पुलिंग करना चाहिए। राइट दादा इज एन वो संकट समय की साकल बोलते हैं ना, ऐसा है। हाँ, बट टू बी यूज स्पेरिंगली एंड इन केस ऑफ इमरजेंसीज, वो भी है। बोथ थिंग्स आर देयर, बोथ थिंग्स आर देयर। अभी मेरे को मेजर एक्सीडेंट है और वो सब है तो बात बराबर है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है या कुछ तो है तो बराबर है। बट मेरे को ये जुकाम हो गया, नहीं तबीयत थोड़ी खराब हो गई, नहीं थोड़ी वो हो गया, तो उसमें कुछ ज्यादा कोई याद नहीं करते हैं। वो जो विवेक है ना, वो थोड़ा यूज तो करने का ही है। हाँ, उसमें विवेक का रोल आ जाता है। विवेक का रोल आ जाए। हाँ, एक बात कर सकते हैं हम, दादा को दूसरी टाइप की प्रेयर कर सकते हैं। मुश्किल का समय है, मुश्किल है एंड रियली बड़ी मुश्किल है एज यू से, तो हम बार बार बोल सकते हैं। हम बार बार क्या बोल सकते हैं कि हे दादा भगवान, ये फाइल खड़ी हो गई, संभव से निपटारा करने की शक्ति दे। ये फाइल खड़ी हो गई संभव, ये हम 50 बार बोल सकते हैं, बिकॉज यू टेकिंग इट एज अ फाइल और हम इसका निपटारा करने की शक्तियां मांग रहे हैं। सो हम ऑटोमेटिकली समभाव बोलते हैं, मैं बिना द्वेष उसका निपटार और निकाल करने का है, बिना द्वेष और निकाल। आई एम एम्फेसिंग दैट। सो मैं ऑटोमेटिकली वितराग पोजीशन में आता हूँ। मैं देहाती शरीर के बाहर के पोजीशन में आता हूँ। मैं शरीर में नहीं रहता हूँ, मैं आत्मा के उसमें आज पोजीशन में आ जाता हूँ, शुद्ध उपयोगी पोजीशन में आ जाता हूँ। तो उस पोजीशन में हम दादा को अप्रोच कर सकते हैं यूजिंग द आज्ञा। इसी आज्ञा यानी मैं कुछ ऐसे आत्मा कि इसका संभव से निपटारा करना है, राइट, देन इट्स फाइन। आपने दादा की आज्ञा पालन की है, फिर दादा जाने क्या करने का। बराबर। Ball is in Dada's court to help you or not to help you. राइट। I am और not इसी asking for help. नहीं, इसी संजोग में मैं एक और बोल रहा हूँ। डेली रूटीन में जब भी बाहर निकलता हूँ, ऐसा तो रोज निकलना पड़ता है कुछ ना कुछ कारण से, बस कोई 2-3 अपने को फाइल जो निपटारा करने का, उसके लिए बाहर निकलते हैं। कुछ भी हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, ये हो, जो भी है, तो उस टाइम पे घर से ही बोल के जाता हूँ त्रिमंत्र के बाद, दादा मेरे को ये फाइल का समय निकाल करने का है। तो जाते 5 काम लेके जाते, 4 काम में तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, 1 काम में नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। तो लेकिन उसमें कुछ ये नहीं रहता है, क्या बोलते हैं, अपने को आगे पीछे नहीं होता है, हम संतुष्ट रहते हैं। तो वही समूह में निकल करने का जो एक भाग को पहले से यूज करते हैं, उसका इफेक्ट भी अपने को पॉजिटिव भी मिलता है। हाँ, 99% और 95% केसेस में यू विल गेट, बिकॉज दोज आर माइनर इश्यूज, यू पॉजिटिव रिजल्ट, यानी प्रॉब्लम सॉल्व होना। बिकॉज वो छोटे मोटे चीज क्या है, वो राग द्वेष से एसोसिएटेड है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, साले को देख लूंगा, ऐसा हमने चार्ज किया है ना, तो वो साले को देख लूंगा वाला ये एविडेंस खड़ा होता है, जहाँ पे कोई अपने से उल्टा करता है। फिर आज मैं संभाव्य निकाल बोलता हूँ तो मैं सीधा हो गया, वो टेढ़ा है तो मैं फटाक से निकल गया। इसलिए जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है वो मेरी टेढ़ापन मैं निकाल देता हूँ,
मैं समभाव से निकाल, मैं समभाव बोलता हूँ, मैं राग के द्वेष में मैं समभाव बोलता हूँ। इसके लिए मेरी जो आंटी थी वो मैंने निकाल दी, तो ऑटोमेटिकली वो सरक बराबर। मतलब मैं ओपन हो गया, सामने वाला जो भी है तो हाँ, मैं आप जैसा बोल ऐसा ओपन हो गया तो सामने वाला बांध ही नहीं सकता हमको। बांध ही नहीं सकता, मैं वो मार सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, इसकी असर जब मैं ऐसा यहाँ पे ये भावना करता हूँ संभव से निकाल, वो वाइब्रेशन उसको पहुंचते हैं सामने वाले को, एंड इट उसका भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसका भी जो द्वेष वाला भाग या जो भी एंटी है अप्रोच वो डाइल्यूट हो जाता है। इट इज वंडरफुल इफेक्ट, आई टेल यू, इट्स अ वेरी पावरफुल आज्ञा, वेरी वेरी पावरफुल। एंड उसको भी असर होता है। सो 80-90% केसेस इन छोटे मोटे प्रसंग में हमको रिजल्ट तुरंत मिलता है, बड़े केसेस में रिजल्ट को थोड़ा टाइम आएगा, क्योंकि हिसाब अगर चिकना है तो इट विल टेक टाइम, बट आएगा जरूर, आएगा जरूर। तो संभव से निकाल, संभव से निकाल, संभव से निकाल। सो ये है, और मुझे नहीं समझते दादा, आपको सौंपी संभव से निकाल करने की शक्ति दे, बाकी क्या करूं, मैं वेट एंड वॉच में हूँ। मेरे को तो आत्मा में बराबर। रहने था, ये आत्मा में रहने देता, अभी आप जानो। ना वो तो दादा ने कई जगह पे मैंने सुना है सत्संग में, दादा ने बोला भी है कि जब तुम बोलते हो समझ में निकल करने का दादा को सौंप दे तो वो दादा की जवाबदारी रहता है, फिर तुम्हारा जवाबदारी खत्म हो जाता है। वो संभव में निकल होता है कि नहीं होता है तो भी दादा की जवाबदारी, तुम्हारा हाँ नहीं, जवाबदारी खत्म हो गई। हाँ, द मोमेंट यू डिसाइड कि दादा ये फाइल है और संभव से निकल, तो आज्ञा पालन हो गई आपके एंड की ओर, फ्रॉम योर एंड दी राइट आज्ञा पालन हो गया अपने। राइट। हाँ, अपने फिर निकाल वो हिसाब के अधीन, जो भी हिसाब है भारी है या हल्का है उसके अधीन, वो अपने टाइम फ्रेम में रिजॉल्व हो जाएगा। राइट। अच्छा, लास्ट में मैं थोड़ा सा एक लेता हूँ, वो जो आपने कर्म प्रूफ की भी जो बात किया हुआ है लास्ट सत्संग में आपने और उसमें मेरे को लगता है ये कर्म प्रूफ तो मेरे को एक बुद्धि का खेल आ रहा है, इसमें सुबीर का बुद्धि का खेल आ रहा है, इंटरप्ले कर रहा है। वो जो कर्म प्रूफ तो हम हो ही गया जब से दादा की ज्ञान मिला है, मतलब कर्म बंद तो पढ़ना बंद ही हो गया है। आप जो बोलना चाहते हो वो कर्मों का जो पूर्वे का कर्मों का जो फल आने वाला है उसमें से हम मुक्त होएंगे, मतलब मुक्त इन द सेंस कर्म फल तो आएगा लेकिन आपको बांधेगा नहीं, आपको असर नहीं करेगा, ये बोलना चाहते हो कर्म प्रूफ के? हाँ हाँ, वो मैंने का मतलब वही था ना, कि जो इफेक्ट आ हाँ रही है ना, इफेक्ट के पार्ट में, ये तो कॉज के पार्ट में तो नहीं है, नॉट कॉजिंग हाँ। कर्म। कर्म की जो इफेक्ट आ रही है जी, डिस्चार्ज जो कर्म है, जो इफेक्ट राइट। दे रहे हैं, वो इफेक्ट हमको असर ना करे। हम्म बारिश तो गिरेगी, लेकिन मेरे को, मैं रेनकोट बनाऊं ताकि बारिश की असर ना पड़े, बराबर। या मैं घर में रहूं, मैं आत्मा में रहूं, तो जो बारिश की असर शरीर को पड़ रही है और मुझे असर नहीं हो रही, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कर्म प्रूफ बराबर। वी आर नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट इज हैपनिंग टू फाइल नंबर 1। राइट राइट। कर्म की इफेक्ट फाइल नंबर 1 पे आएगी, क्योंकि कॉज तब किए थे, तो अभी मन वचन काया पूरा इफेक्ट तो बाकी है ना, वो तो पूरी डिस्चार्ज होने वाली है। जो मैंने कर्म इतने पिछले अवतारों में जो चार्ज किया है, वो पूरा बर्थ टू डेथ पूरा मन वचन का इफेक्ट तो देने वाले ही है। राइट। जो जो इफेक्ट आएगी, मन में विचार आएंगे, वाणी निकलेगी, उसकी असर ना हो, या दूसरों की मन वचन काया की असर इसको है, तो मैं उसमें ना रहूं, मैं आत्मा में रहूं, और उसकी असर ना मुझे हो, उद्गल की असर ना हो। दैट इज व्हाट आई मेंट बाय कर्म प्रूफ। बराबर। ठीक है, मैं क्लियर कर लिया मेरा को। ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। जी धन्यवाद। जय सच्चिदानंद रंगानंद जी, बंधन जय सच्चिदानंद, पुरीनंद जय सच्चिदानंद। ये मुझे वो पूछना है, वो पेंडिंग जो कर्म बोलते हैं ना, पेंडिंग कर्म, हाँ, तो वो थोड़ा समझाइए कि देखिए इसमें मतलब चार्ज तो होता है, और डिस्चार्ज के टाइम में एक दो जो जिनको ज्ञान नहीं मिला उनके लिए बंध पूर्वक निर्जरा होती है, और जिनको ज्ञान मिला उनको संवर पूर्वक निर्जरा होती है। तो फिर पेंडिंग का क्या बताया है वो समझिए। पेंडिंग यानी आज हम महात्माओं को
जब डिस्चार्ज होते हैं मन वचन काया, उसमें जितना हम तन्मयाकार रहे, जितना अभिप्राय क्लियर नहीं हुए, तो उतना पेंडिंग रहता है, वो आगे क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। पेंडिंग मतलब निजरा नहीं हो, पेंडिंग क्या निजरा नहीं होती उसकी जो है, पेंडिंग यानी बाकी है, बाकी है। वो डिस्चार्ज नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं, वो हाँ डिस्चार्ज रह जाए। हाँ हाँ, शुद्ध लेकिन डिस्चार्ज। हाँ लेकिन जब संजोग आता है तो वो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई व्यक्ति का के साथ इंटरेक्शन हुआ और बाद में विचार क्रोध का आया, मान लीजिए, ठीक है। अब जो है मुझे वो जो है, मैं उस टाइम मेरा भान नहीं रहा, तो वो जो है, तो आप बोलेंगे वो पेंडिंग पेंडिंग रहा, तो वो जो है मतलब वो क्रोध के संजोग दोबारा आएंगे, ऐसा होता है। पेंडिंग का मतलब क्या? नहीं, सपोजिंग कि आपका एग्जांपल लूं मैं, अगर मानो आपको मानो किसी ने कुछ बोला और आपको उसके ऊपर क्रोध आया, जिसको हम गुस्सा बोलते हैं, तो उसमें उस टाइम वो डिस्चार्ज हो गया और आपको भी लगा ये आदमी ऐसा है वैसा है, वो सब हो गया। फिर अगर अगर आपने बाद में उसको साफ कर दिया, नहीं ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो क्लियर भी हो गया। अगर साफ नहीं किया और वो आपकी नजर में दोषित रह गया, तो वो भाग पेंडिंग रहेगा। अच्छा, वो दोषित रह गया तो वो बात पेंडिंग रहेगा। हाँ, क्योंकि उतना मतलब कि वो पूरी तरह से वो क्लियर नहीं हुआ, वो दोषित आपका नहीं जो हुआ। क्रोध का परमाणु है ना, वो एग्जॉस्ट तो हो गया, लेकिन आपका ओपिनियन ये बराबर था, ऐसा रहा, इसलिए हाँ, वो पेंडिंग है। अगर आप पछतावा करके साफ उस समय बाद में आयुष्य पूरा होने तक कभी भी इन एंटायर लाइफ स्पेन भी साफ कर दिया तो पेंडिंग नहीं है, लेकिन नहीं किया तो बाकी है, क्योंकि उतना ठेस अपने मानसिक पहुंचाई या वाणी से पहुंचाई ना उसको। मतलब मान्यता के आधार पे वो पेंडिंग है, वो अपनी वो मान्यता वो रही है अभी भी जो है कि वो हाँ सामने वाले को। हाँ, एक मान्यता पेंडिंग है, बिकॉज ऑफ द मान्यता एंड बिकॉज ऑफ द फिजिकल ऑल्सो। फिजिकल का नॉर्मली आ जाता है, इस भाव में रिपीट आ जाता है। तो वो फिर वो मान्यता जो पेंडिंग रही, तो उसका वो संजोग दोबारा आता है क्लियर होने के लिए, संजोग हाँ हाँ दोबारा हाँ जो। हाँ, यानी समथिंग विल हैपन ताकि वो मान्यता वापस पॉप अप हो जाएगी। अच्छा, उस संजोग, ठीक है। और दूसरा जो ये चरण विधि में विश्व वंद्य एवं प्रगट शुद्धात्मा स्वरूप प्रभु बोलते हैं, तो उसमें दादा भगवान को ये बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, हे विश्व वंद्य एवं प्रगट शुद्धात्मा स्वरूप? ये हाँ, किनके लिए? बेसिकली दादा भगवान को ही बोल रहे हैं। तो क्योंकि वो तो जो है मतलब वो तो जो है शुद्धात्मा स्वरूप से ऊपर है ना, वो जो है उनकी दशा ऊपर है ना उसके। हाँ, बट ये क्या है कि ये थोड़ी कृपाण देव की टर्मिनोलॉजी इसके अंदर इनबिल्ट हो गई है। अच्छा। हाँ, तो वैसा है, वे विश्व वंद्य एवं प्रगट शुद्धात्मा स्वरूप प्रभु, यानी एक दादा भगवान के लिए अहोभाव विश्व वंद्य, सारा विश्व जिसको हम वंदन करता है, हाँ, करने लायक है विश्व में, वो ऐसे जिसके अंदर शुद्धात्मा भगवान प्रकट हो गए, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ज्ञानी को मैं फिर आगे आगे बोलता हूँ। एक अहोभाव व्यक्त करके मैं हे दादा भगवान बोलने के वजह, कैसे दादा भगवान विश्व वंद्य ऐसा प्रगट शुद्धात्मा स्वरूप प्रभु मने अने सर्वे, जो भी नेक्स्ट सेंटेंस है। मतलब ये लेकिन है भाव 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 से ये दादा भगवान के लिए हाँ, है। भाव को दादा भगवान को जाता है। अच्छा, तो ठीक है, वो वर्डिंग जो भी हो, लेकिन भाव उस उनके लिए है हाँ उस। हाँ, हम दादा भगवान के लिए अहोभाव करते हैं आज भी, भले भले काफी लोगों ने दादा भगवान के स्थूल रूप से दर्शन नहीं किए हैं, पर हाँ, आज भी दादा भगवान के ज्ञान के लिए, आज्ञा के लिए सबको अहोभाव तो है ना, दादा क्या ग्रेट है, आपका ज्ञान कितना ग्रेट है, आप कितने ग्रेट हो, वो अहोभाव तो है ना आज भी। आज ये हमने सिमंदर स्वामी को नहीं देखा है, लेकिन हाँ, प्रत्यक्ष है, तो हम जब भी सूक्ष्म ये सूक्ष्म समझ सूक्ष्म रूप से हम उनको मतलब भावना करते हैं। हाँ, एक एक अहोभाव तो है ना, भले वो अभी मोक्ष तो नहीं गए, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में है तो वहां पे पहुंचता है। आज सिमंदर स्वामी को हमने कहाँ देखा है, लेकिन हमको कितना अहोभाव होता है, हाँ हाँ तीर्थंकर, फिर उनकी भजना करते हैं, पद गाते हैं या उनके गुण सुनते हैं, तो वी हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट ने, ओ भगवान आपके दर्शन से मेरा केवल ज्ञान खुला होने वाला है, यू सी। वी हैव नॉट सीन हिम, बट इवन आई हैव नॉट सीन हिम। भले हम ज्यादा भगवान को देखा है, लेकिन सिमंदर स्वामी भगवान को कहाँ देखा है, यानी इन आंखों से है ना।
बट एक वर्णन के अनुसार ज्ञानियों का, ज्ञानी दादा भगवान ने वर्णन किया है, शास्त्रों में वर्णन किया है, उसके में मुझे अटूट श्रद्धा है और मैं कितना विनय से करता हूँ ना, तो वो पहुंचता ही है ना, इट्स सिमिलर टू दैट, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। ये लेकिन ये अपने अंदर शुद्धात्मा भगवान या दादा भगवान को भी जो है साथ में आ जाता है ना उसमें। अभी वो क्या है, वो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द रेफरेंस, और कुछ सेंटेंस में ऐसा ले भी सकते हैं, कुछ सेंटेंस में इन प्रिंसिपल इट इज मेंट फॉर हिम एज सच, यू नो, दादा भगवान धी ज्ञानी पुरुष। फिर ये एक आता है दया आपो, शांति आपो, समता आपो, सत्य आपो। ये जो गुण बताए, व्यवहार के गुण बताए हैं, ये उसमें कर्तापना का बताया, तो ये जो है मतलब ये इसका क्या महत्व है, जो मोक्ष पाने के लिए ये हम क्यों बोलते हैं? ये क्या है, ये चरण विधि ऐसी चीज है कि अभी मैं पहले नामधारी था, अभी मैं शुद्धात्मा हो गया, सो इट इज, मैं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा हूँ, तो मेरे को दो काम करने हैं। एक तो मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ मेरा स्वरूप है, उसको याद करना है, रेनफोर्स करना है, और जो पीछा जो था, पहले जो था मैं, उसको अभी साफ करने का है। तो वो साफ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं मांगता हूँ, क्या हो रहा है कि मुझे अभी गुस्सा आता है, ये आता है, तो इसलिए उसका ऑपोजिट मांगते हैं कि मुझे मने दया आपो, शांति आपो, समता आपो, सत्य आपो, त्याग आपो, वैराग्य आपो। ये काउंटर गुण मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि उसके ऑपोजिट आज डिस्चार्ज में आ रहे हैं, तो जब डिस्चार्ज में आए तो मेरे पास ये गुण रहे, ताकि वो मेरा नल्लीफाई हो जाए, और पुद्गल का भाग जो शुद्धिकरण वाला बाकी है, वो पुद्गल शुद्धिकरण हो जाए। जैसे दया क्यों मांगते हैं, करुणा क्यों नहीं मांगते हैं? अभी क्या है कि वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिसने लिखा था और दादा भगवान ने अप्रूव किया था, तो उनके सोच में जो होगा उस हिसाब से है। क्योंकि अगर करुणा करुणा होती ना तो मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो निर्दयता है, इसलिए मैं दया मांग रहा हूँ। अच्छा, वो न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बता रहे हैं हाँ, ऐसा जो है। हाँ, पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए ही है, पूरा पुद्गल शुद्धिकरण के लिए ही है। मैंने जो भी अंतराय डाले, विराधना की है, ये किया है, वो किया है, संसार भजवन आरम काटती, तो मैं क्षमा मांगता हूँ इन वंस। हाँ, तो इसका इसेंस क्या है, द इसेंस, इसका इसका मर्म क्या है कि फाइल नंबर 1 को शुद्ध करके निर्जरा करने की। लेकिन एक तरफ बोलते हैं कि हम इसके महात्मा इसके पार हो गए हैं, फिर जो है फिर एक तरफ ऐसे भी बोलते हैं कि महात्मा को अभी त्याग नहीं रहा, महात्मा को जो है दया नहीं रहा, जो है महात्मा को ऐसे जो है ऐसे बोलते हैं, महात्मा को जो है ये भाव भी नहीं रहा, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, जो है कभी जो वो है, महात्मा को नहीं है, यानी क्या है कि प्रतीति में नहीं है, प्रतीति में मैं शुद्धात्मा हो गया हूँ, लेकिन मेरे लक्ष्य और अनुभव में वो आया नहीं है ना, टोटली 100% आया नहीं है। इसलिए वो जो अंतरात्मा वाली दशा है, वो ड्यूअल रोल वाली दशा है। अच्छा, इसके लिए वो जो लीकेज वाला भाग पड़ा है, अभी भी तन्मयकार हो रहा हूँ, तो पुद्गल, इसके लिए मेरे को ये सब बोलना पड़ रहा है। ठीक। फिर लास्ट मेरे को 2 वर्ड्स का मीनिंग बता दीजिए, अपराध और करुणा ऐसी चीज है, करुणा टू सम एक्सटेंट हमारे में शुरू हुई है। जितना डिस्चार्ज अहंकार जीरो की ओर जाता है, बुद्धि जीरो की ओर जाती है, जो दादा भगवान की दशा थी, तब जाके करुणा रहती है। अच्छा, अभी वी हैव नॉट 100% दया और निर्दयता से मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि डिस्चार्ज अहंकार अभी भी है ना, अभी भी डिस्चार्ज बुद्धि है। दया इज वेयर बुद्धि इज देयर। हाँ, ये क्लियर हो गया। अभी लास्ट मुझे बता दीजिए, 2 अपराध और विराधना का अर्थ बता अपराध और विराधना क्या? इनका अर्थ बता दीजिए। अपराध किसको कहते हैं, विराधना किसको कहते विराधना यानी टिपिकली जो महान पुरुष है, संत है, आचार्य है, जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आगे है, ज्ञानी है, तीर्थंकर है, उनके विरुद्ध बोलना, उनके ज्ञान के विरुद्ध बोलना, ऐसा अभिप्राय व्यक्त करना, लोगों में बात करना, वो सब विराधना में जाता है। राग यानी विराधना मतलब कि ज्ञानी या ज्ञानी पुरुष या महान मतलब जो जिनके महान, आध्यात्मिक उच्च पुरुष है, उनके विरुद्ध बोलना है सब ना। हाँ, उनके विरुद्ध बोलना। अच्छा, और अपराध किसको बोलते हैं?
अपराध यानी क्या है कि मुझे मालूम है ये गलत, मैं टीका कर रहा हूँ या मैं वो गलत बात है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे मालूम है किसी की टीका नहीं करनी चाहिए, ये गलत कर रहा हूँ, मुझे गलत नहीं करना चाहिए मालूम है, फिर भी मैं करता हूँ, तो उसको अपराध कहते हैं। तो वो जो है मतलब मान्य के वो किस लेवल पे होता है? मन के लेवल पे होता है कि वाणी के लेवल पे होता है कि वचन के लेवल पे होता है? किस लेवल पे होता है? नहीं, विराधना तो वाणी पे भी होगी ना। नहीं, अपराध अपराध। हाँ, अपराध अपराध भी वाणी के लेवल पे ही होगी, टिपिकली वाणी के लेवल पे ही होगी। मन के लेवल पे हो सकती है, तो वो मन के लेवल भी हो सकती है, उसके बारे में ऐसे गलत विचार करना, अस्याद्वद मनन। जिससे उसको दूसरे सामने वाले को दुख हो, उसको बोलते हैं ना अपराध। सामने वाले को किसी मन वचन काया से दुख हो, ऐसा ऐसा होना, उसको अपराध बोलते हैं। नहीं नहीं, उसको नहीं अपराध, अपराध इज नॉट दैट। हाँ। જાણી જોઈને વિરાધના કરવાની નથી, છતાં હું વિરાધના કરું છું, મને ખબર છે આ નથી કરવાનું, છતાં હું જાણી જોઈને કરું છું, તો એ અપરાધમાં જાય છે। हाँ, मतलब वो जानबूझ के दूसरों को दुख पहुंचाने वाला नहीं, विराधना। नहीं, अपराध की बात कर। हाँ, यस, अपराध उसको कहते हैं। इट इज जिसको बोलते हैं ना ग्रेव क्राइम, बहुत लूज लैंग्वेज में, इट इज नॉट वेरी ट्रू ट्रांसलेशन। अच्छा अच्छा, जानबूझकर विराधना करना उसको अपराध बोलते हैं, आप ऐसा बोल हाँ, रहे हैं? मुझे मालूम है मुझे नहीं करना चाहिए। सी, विराधना एक तो अननोइंगली हो जाती है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती है, हाँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं करता हूँ। चाहे विचार से करो, चाहे वाणी से करो, हाँ, चाहे चाहे किसी, हाँ, कैसे कर सकते हो। अच्छा, ऐसा। ठीक है, तो ये लेकिन इसका रिजल्ट जो है, अपराध का रिजल्ट जो है ज्यादा वो मतलब उसका भयंकर भयंकर भयंकर। अच्छा, क्योंकि विराधना वाला तो छूट भी सकता है भाई, कोई बोले आगे जाके आफ्टर सम टाइम, या भविष्य में कोई बोले भाई ऐसा कर, ये गलत क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वापस मोड़ भी सकता है, हाँ हाँ मेरी मिस्टेक है। इसको तो बहुत सफरिंग आएगा, क्योंकि वो जानबूझ के किया है उसने। ठीक है, वो भी प्रतिक्रमण वगैरह से छूट सकता है, बट इट विल टेक टाइम फॉर हिम टू रिवर्स हिज अपना ओपिनियन। ठीक है, समझ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। यस, जय सच्चिदानंद। लीलाबेन पूना। लीलाबेन, बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुलिन दादा। हाँ, जय सच्चिदानंद, बोलो। हाँ, वो आत्मरंजन किसे कहते हैं? बस आत्मा में रहना और उसके खुशी में रहना, वो हमारा अंतरात्मा दशा आत्मा में रहती है, आत्मा पक्ष में रहती है, आत्मा जागृति में रहती है, शुद्ध उपयोग में रहती है, वो सब आत्मरंजन में हो जाएगा। मैं अभी दादा भगवान असीम जय का उपयोग पूर्वक बोलो तो आत्मरंजन में जाएगा। आज्ञा पालो, हाँ, या आत्मा पक्ष में रहना, उसको आत्मरंजन कहते हैं। ये जो हमारा अंतरात्मा है ना, वो आत्मा के पक्ष में बैठता है तो उसको आत्मरंजन कहते हैं। वो मन के पक्ष में बैठता है, मन खुश हो जाता है तो उसको मनोरंजन कहता है। अभी भी हम जहां जहां मन खुश हो जाता है, अरे मजा आ गया, मस्ती आ गई, मन की मस्ती चढ़ती है, वो सब मनोरंजन में जाएगा। और जहां जहां आत्मा में रहते हैं, आत्मा का उपयोग है, आत्मा का उल्लास है, आत्म जागृति है, तो उसको आत्मरंजन कहते हैं। तो कीर्तन भक्ति भी मैं उपयोग पूर्वक करूँ तो आत्मरंजन, फिर मैं राग रागिणी में पड़ गया, अच्छे अच्छे ट्यून में पड़ गया, आलाप ऊपर नीचे लिया, उसमें मेरा जागृति गई तो मजा आ गया, उसके बाद बोलता हाँ आज तो बहुत मजा आ गया, तो सब मनोरंजन में गए। तो ऐसे राग नहीं निकलती है तो कहते ना तेरी राग अच्छी नहीं है। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। ये तो मैं खाली जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मनोरंजन कहाँ पे जाता है। तो पिक्चर के गीत में भी मनोरंजन आता है, मन जहाँ खुश आता है, देयर वेरियस एस्पेक्ट्स। राग और ये कीर्तन भक्ति एक अलग व्यू पॉइंट है, उसमें क्या है कि राग की जरूरत है ही नहीं एक्चुअली। दादा भगवान ने तो एक राग में गाने को बहुत स्पष्ट सूचना दी थी,
तो आप एक राग में गाना, उपयोग पूर्वक गाना, किसी ने राग चेंज किया तो बोले ऐसा राग क्यों चेंज किया, तो ऐसा उनका था ताकि राग में न जाके आत्मा में जागृति बनी रहे, दादा भगवान में जागृति बनी रहे। वो एक भक्ति का एक श्रेष्ठ प्रकार बताया था, सिंपल फॉर एवरीबॉडी। भले फिर अपने को राग नहीं आता है, लेकिन दादा भगवान का निधि ध्यान रहता है तो बहुत हो गया। हाँ पर राग तो क्या, हाँ सिंपल है, उसमें क्या थोड़ा इधर उधर हो गया, डज नॉट मैटर। हाँ। और वो दादा भगवान का निधि ध्यासन और वो ज्ञातदृष्टा पद में रहते वो एक ही है? निधि ध्यान यानी जो उनका चेहरा दिखाई देना, स्थूल निधि हम्म, ध्यासन। स्थूल गुण दिखाते तो गुण का निधि ध्यासन, वाणी है तो वाणी का निधि ध्यासन। निधि ध्यासन के प्रकार है, पण एक टू आंसर योर क्वेश्चन सादी भाषा में समझाने के लिए, जो दादा भगवान दिखते हैं वो तो उसको निधि ध्यासन बोलते हैं। ज्ञाता दृष्टा तो अलग बात हो गई, वो तो डायरेक्ट आत्मा का शुद्ध उपयोगी हो गया। फाइल नंबर 1 क्या कर रही है, उसको जानना, प्रज्ञा के प्रकाश में उसको जानना, उसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। ऑब्जर्वर एंड सीयर फ्रॉम प्रज्ञास व्यू पॉइंट, बुद्धि से नहीं, आंख से नहीं, प्रज्ञा के व्यू पॉइंट से। मैंने आज पिक्चर देखा तो उसको ज्ञाता दृष्टा नहीं बोलते, ये पेड़ देखा उसको ज्ञाता दृष्टा नहीं बोलते, वो तो आंख ने देखा। वो आदमी गधा है, वो गधा है देखा, वो तो बुद्धि ने बताया वो गधा है, उसको ज्ञाता दृष्टा नहीं बोलते। फाइल नंबर, ये बुद्धि गधा है, ये आदमी गधा है, ऐसा ओपिनियन जब देती है मेरी बुद्धि, तो मेरी बुद्धि ने ये ओपिनियन दिया, ऐसे बुद्धि को ज्ञेय बना के खुद जब एक ज्ञाता देखता है, बुद्धि को ज्ञेय बना के जब खुद देखता है तो उसको ज्ञाता कहते हैं। प्रज्ञा के प्रकाश में फाइल नंबर 1 क्या कर रही है, फाइल नंबर 1 का मन क्या कर रहा है, वाणी क्या कर रही है, वर्तन क्या कर रहा है, उसको देखना, उसको रियली स्पीकिंग भगवान की भाषा को ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। फाइल नंबर 1 ज्ञेय और खुद प्रज्ञा ज्ञाता। हाँ ऐसा शुद्धात्मा इज द ज्ञाता, बट शुद्धना का रिप्रेजेंटेटिव आज प्रज्ञा, इसलिए मैं प्रज्ञा बोलूं। आत्मा के प्रकाश में देखना, विच इज प्रज्ञा के प्रकाश में। हाँ। और वो कहते हैं ना व्यवस्थित में डकोडकल, वो कैसे होती है? तो वो भी डकोडकल भी, वो भी तो व्यवस्थित ही हुआ ना। वो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज में बुद्धि का डका है, उसको देख के उसमें तन्मय का ना होना, वो डकोडकल ना करने वाली बात है। दो टाइप क्या के है? डका है, एक तो बुद्धि डका करती है, ये आदमी बराबर नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बुद्धि का डका है डिस्चार्ज में। और एक फाइल नंबर 1 में तन्मयाकार हो जाते हैं, वो हमारा डका है। इसलिए सेंटेंस, उसका आंसर सेकंड सेंटेंस में ही है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में ही है। ડખો દખલ કરું નહીં એવી શક્તિ આપો, કેવળ देखभाल કરવાની શક્તિ આપો। यानी मैं सिर्फ उसको देखभाल, यानी ज्ञाता दृष्टा। देखभाल इज दी, क्या बोलते हैं, लेमेन्स टर्मिनोलॉजी फॉर ज्ञाता दृष्टा। तो देखभाल करवानी शक्ति आपो, यानी कि मैं ज्ञाता दृष्टा रहूं और उसमें तन्मय का ना रहूं, ऐसी मुझे शक्ति आपो। सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ डकोडकल। हाँ व्यवस्थित ऑपरेट्स ऑन फाइल नंबर 1। स्थूल जो मन वचन काया है उसके पर वो व्यवस्थित काम करती है, तो उसको देखना, तो हम डकोडकल नहीं किया। हाँ विचार तो आ सकते हैं, मन से डको हो सकता है, वाणी से हो सकता है, काया से हो सकता है, किसी को जाने का है कहीं पे घूमने, हाँ, अरे जाने का नहीं, जाने का नहीं, तू फंस जाएगा उधर, नहीं जाने का, तो मैंने ब्रेक मार दी उसके जाने, तो मैंने डखा किया, वो जा रहा था तो मैं क्यों डखा करवा। और एक तो क्लासिकल एग्जांपल दादा की अक्रम में आया था, एक आदमी सॉर्ट ऑफ फरियाद कर रहा था, दादा ये मेरा फ्रेंड है, मैं उसको बोलता हूँ चलो सत्संग में आओगे, तो बोलेगा नहीं, मुझे बॉम्बे क्रिकेट मैच देखने जाने का। मे बी ही मस्ट बी आउट ऑफ बॉम्बे, कोई दूसरा सिटी में होगा, बड़ौदा और अहमदाबाद और वेर एवर। और उस समय टेस्ट मैच का था, 5 दिन की मेरे को तो टेस्ट मैच में जाने का है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं आऊँगा। तो उसका फ्रेंड बोलता है, अरे तेरे को वहाँ पे जाने, जब मैं तेरे को कहीं पे बोलता हूँ तो बोलते हैं नहीं मुझे दुकान में बहुत काम है, दुकान में काम है, मैं नहीं निकल सकता हूँ।
और अभी तो टेस्ट मैच में जाने का टाइम है और सत्संग में आने का टाइम नहीं है तेरे को, ऐसा उसने उसको बोला। फिर ये बोलने के बाद वो आया दादा भगवान के पास, दादा मैंने ऐसा उसको कहा, तो बोला दैट इज अ डको, ये वाणी से डको किया उसने। भाई वो इसको जाने का है तो बोल सकता है, भाई यहाँ पे आएगा तो लाभ होगा, आने जैसा है, मैं विनती करता हूँ। तो अगर ये बोलोगे तो तूने तेरी फर्ज अदा कर दी, और तू ऐसा बोलेगा तो तेरा डखा हो गया। तो व्यवहार में जो डखा होता है वाणी से, वो एक खाली छोटा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मन से भी होता है या वर्तन से भी हो सकता है हाँ, ना? ये स्थूल वाला भाग है, और तन्मय का रोना दूसरा टाइप का भाग, टू टाइप्स ऑफ डखा। बराबर। जय सच्चिदानंद। जैसे जय सचिदानंद। दीपक भाई किल्ला पार्टी। જય સચ્ચિદાનંદ, દરેક મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. તમારો અવાજ પુલિનાનંદજી, બરાબર નથી આવતો. હા પુલિનાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. हाँ बोलो। અ, પ્રશ્ન એ હતો કે આજે દાદા એમ કહ્યું છે કે અમે અમારી પ્રકૃતિને કોઈ દિવસ વગોવી નથી એમ, એવું કહ્યું છે દાદાએ કે અમે આગળ પ્રકૃતિને પાછળ શું કીધું છે એ કયા રેફરન્સમાં વાત છે? તો વાંચ્યું છે કે પ્રકૃતિને અમે કોઈ દિવસ વગોવી નથી એમ. હા પછી એટલે શું કહેવા માંગે કે અમે પ્રકૃતિનું કોઈ દિવસ એ ના એ ખરાબ ના બોલ્યા આપણે એમ, પોતાની પ્રકૃતિ કે એમ. હા એટલે મારામાં આવડત નથી, હું બેકાર છું, હવે મારાથી આ નહીં થાય, એ અપેક્ષા હોઈ શકે છે। અચ્છા, આવું બરોબર આખું. નેગેટિવ નહીં કરવાનું, પોતાને માટે નેગેટિવ નહીં બોલવાનું। હા એને પદ ગાતા આવડતું નથી, ના ગાતા કેમ ના આવડે, આ તો દાખલો એમ, મને આ સમજાતું નથી, આ આપતાવાણી મને સમજાય કેમ નહીં, હા, એ અપેક્ષા એ કહ્યું હા છે. હા, હું તો બહુ યુઝલેસ છું, મને આવડે નહીં, એટલે એ અપેક્ષા। બરાબર બરાબર. હા, હું પછી આપણે 14મી એપ્રિલનું પછી પૂછીશ, હમણાં થોડુંક કામ છે એટલે પછી પછી પાછો આવું હું. જય સચ્ચિદાનંદ. હેલો, હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. નલિનીબેન ભાવસાર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સંભળાય છે? હા સંભળાય છે। હાજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હવે લગભગ મહિનો થયો, હવે એ વખતે એટલો બધો કંઈક દુખાવો કમરમાં ઉપડ્યો, તો એ વખતે એકાકાર થઈ જવાયું, એવો દુખાવો થયો, પછી હોસ્પિટલમાં એડમિટ કર્યા, તો એમ કે કિડનીમાં પિત્તાશયમાં પથરી છે એવું, પણ એ વખતે એટલું બધું એકાકાર થયું જંકાર કે એ દુખાવો એમ થાય કે હવે મરવાની અવની પરાત થઈ જવું હતું, તો એ વખતે મને એકાકાર થઈ ગયું, અને પછી ટ્રીટમેન્ટ શરૂ થઈ, તો જ્યારે 2-3 કલાક થયા એટલે મને પછી અંદરથી થયું કે આ અંદર ડબલ અંદર ફળી જવાયું, તો પરમાણુઓ પાછી એના ચોટે ખરા કે એકાકાર થઈ ગયા અને દુખાવો આવ્યો, તો મને દુખે છે, હું બાપા એમ બોલવા છતાંય પણ 2-3 કલાક ટ્રીટમેન્ટ ચાલી, પછી મને ભાન થયું કે આ મારું નથી, આ નલિનીનું છે, વેદનીય કર્મ તો મન વચન કાયાને આવવાના જ છે, તો આ પછીથી એ પરમાણુઓ ચોટે નહીં ને? ના ના, એને કઈ બહુ ટેન્શન નહીં લ્યો, એનું બહુ ટેન્શન નહીં લ્યો, એ તો શરીરનું થોડુંક રહે, અતિ વેદના હોય, અતિ વેદના તો તેમાં થોડુંક ભળી જવાય, પણ પછી તો તમે બહાર નીકળી ગયા ને એટલે કઈ વાંધો નહીં, એટલે બધું છૂટું થઈ હા, ગયું। પછીથી તો એનાલિસિસ કરવા માંડ્યું અને જોયું કે આ કયા બહુનું હશે, કેવું હશે, કઈથી કેવું આવ્યું, કે પાછું અંદર એનાલિસિસ કરવા માંડ્યું, આખો દિવસ ને દિવસ, કે જ્યાં સુધી 8 દિવસ સુધી મને એડમિટ કરી હતી, તો પછીથી તો નિરંતર અંદર સત્સંગમાં રહું, કે પછીથી આ બધું પશ્ચાતાપ કરીને ધોવા માંડ્યું, પણ મને એવું ડર લાગે કે એ વખતે જો જુદા ના રહ્યા અને 2-3 કલાક કે અમુક
ટ્રીટમેન્ટ શરૂ થઈ પછી મને એમ થયું કે આ કેરી મળતો નહીં થાય ને. ના નહીં થાય, પાછળથી તમે ધોઈ નાખ્યું ને, હા પાછળથી છૂટા પડી ગયા ને તમે. હા એટલે એટલે એ વખતે ના એટલે કેરી ફોડ નહીં થાય, ચિંતા નહીં કરો. હા પછી બીજું કે સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાન ને નમસ્કાર કરું છું. હવે સર્વજ્ઞ એટલે એમાં એમાં શું આવે? સર્વજ્ઞ એટલે એ અર્થમાં અંદર શું દાદા કહેવા માંગે છે? સર્વજ્ઞ એટલે જેને કઈ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી, બરોબર. જેને આ દુનિયામાં કઈ જાણવાનું બાકી નથી, કઈ સમજવાનું બાકી નથી, એને સર્વજ્ઞ કહેવાય. એટલે પૂરેપૂરે આચાર્ય થી ઉપર અને તીર્થંકરની વચ્ચેના જે પદ છે એ સર્વજ્ઞ કહેવાય ખરું? હા કહેવાય કહેવાય. એ ટચ થઈને આવ્યા ને, કેવળ જ્ઞાન ટચ થઈને આવ્યા, કેવળ દર્શન હતી ને. બરોબર. હા એટલે કેવળ દર્શનની દશામાં તો એમને પછી બાકી શું રહે? બધું સમજાય છે, ખાલી અમુક ને દેખાતા નથી, બાકી સમજાય છે બધું જ. હા હા બરોબર. હવે તીર્થંકર ભગવાનને જયારે સવાર નમસ્કાર કરીએ તો દેહને અને અંદર પરમાત્માને બે બાજુથી એમ કે છૂટા પાડીને નમસ્કાર કરીએ તો એ આપણને બરોબર છે. એટલે શું છૂટું? એટલે શું પાડો છૂટું? એટલે સવારમાં આપણે વિધિમાં બેઠા હોય તો સિમંદર સ્વામીને દાદા ભગવાનની સાક્ષી શ્રી સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર કરું છું તો એમ કે દેહ અને પરમાત્મા બે રીતે દર્શન કરું તો યોગ્ય છે. પણ બે રીતે કરવું એટલે શું કરશો? ના એટલે મને એમ કે એવું લાગે કે પરમાત્મા અને દેહ બે બે એમ કે એક જ રીતે કરું કે બે આમ દેખાય કે આ પરમાત્મા જુદા જ છે. દેખાય તો ઠીક છે, જો તીર્થંકર ભગવાનનો દેહ જ પરમાત્મા સ્વરૂપ થઈ ગયો. બરોબર બરોબર. હા હા આપણે છે ને આ બધા બુદ્ધિના ડખા નહીં કરવાના. હા બરોબર. હા હા હા. મને આ દેખાય છે, એનો દેહ તો જુદો છે જ, આત્મા તો જુદો જ છે જ, એમાં આપણે પાડવાની જરૂર નથી. હવે ખાલી દેહનું નિધિધ્યાસન બી કરીને કરશો ને તો એ બધું પહોંચી જ જશે જ્યાં પહોંચવાનું છે ત્યાં. બરોબર. હા એટલે મને એમ કહ્યું કે આ ભૂલ થતી નથી ને પાછી. ના એટલે એવું કઈ એનાલિસિસ કરવાની જરૂર નથી. ઇટ ઇઝ એ આપણે એટલું રાખો તો બહુ છે એમ કહું છું હું તો. હા બરોબર. સિમંદર સ્વામી ને નમસ્કાર કરું છું એટલે એમને નમસ્કાર પહોંચી ગયા, એમને પહોંચ્યા એટલે એના આત્માને પહોંચી ગયા, બધાને પહોંચી ગયા. હા બરોબર બરોબર. એનો આત્મા જુદો છે જ, એમાં કઈ તમારે તમને દેખાય એટલે જુદો છે એવું નથી. એનો આત્મા તો જુદો જ છે અને એનો દેહ જ આખો પરમાત્મા સ્વરૂપ થઈ ગયો છે, શુદ્ધ દેહ, જેની હાજરી માત્રથી કલ્યાણ થાય. હા બરોબર. તો પછી તેને નમસ્કાર કરો તો આપણા માટે ચાલે એવું છે. બરોબર. એ તો ભૂલ થઈ એમ કે પેલું બે બાજુથી આમ બુદ્ધિ એવું બતાવે ને એટલે મને કન્ફ્યુઝ થતી હતી. અરે તમે જયારે બોલો કૃષ્ણ ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું એટલે કૃષ્ણ ભગવાન અંદર જે શુદ્ધાત્મા છે એના જેવો આવી જાય. એમાં કઈ પછી છૂટું બોલવાનું ના હોય. ના બોલવાનું નહીં પણ એનો ભાવાર્થ જ પકડવાનો છે. હા બરોબર. શબ્દમાં નથી જવાનું એવી રીતે. હા હા બરોબર. એટલે પછી કઈ વાંધો ના આવે ને કે ભૂલી જાવ, આવું કઈ થતું હોય બુદ્ધિ રખા કરે અને આવું થઈ જાય તો મને કે હું કઈક ભૂલ તો નથી કરતી ને. હા વાંધો નહીં, પૂછી લેવાય, વાંધો નહીં. હા હા. જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અભિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનંદનજી. પુલિનંદનજી, આપણે એનઓસી દાદા કે ને તમારે એનઓસી મળવું જોઈએ તો એનઓસી નો એટલે અંદરથી આપણું મન વચન કાયાનું ડિપાર્ટમેન્ટ થી આપણને એનઓસી મળવું જોઈએ કે હવે એ કહે છે કે આપણે કહે છે કે હવે તમે સાફ થઈ ગયા કરીને એમ એને એનઓસી કીધું છે? એનઓસી એટલે સામાન્ય ભાવે શું કહેવા માંગે છે? કોઈનો ક્લેમ બાકો ના રહેવો જોઈએ. કરેક્ટ. કોઈ વ્યક્તિનો આપણા પર ક્લેમ, કોઈ જીવ માત્રનો આપણા પર ક્લેમ ના રહેવો જોઈએ એવું એનો કહેવાનો મર્મ છે, એનો ભાવાર્થ એવો છે. બસ પછી જોઈ લેવાનું, દ્રાગદેશ વાળો હિસાબ ક્લિયર થઈ જાય એટલું જોવાનું. એમ નહીં, એટલે આપણે ભૂલ ભાંગી ક્યારે કહેવાય કે આપણે હવે એને માફ, આપણે પોતે મન વચન કાયાથી
કે ને કે પોતાની પ્રકૃતિ પણ નિર્દોષ દેખાશે કે સામેવાળો બી નિર્દોષ છે, આ 1 નંબરની ફાઇલ બી નિર્દોષ છે ત્યારે? ના, એવું કઈ નથી, એવું કઈ નથી. એ અને એનઓસી આખી વસ્તુ જુદી થઈ ગઈ. ઓકે. એ બે વસ્તુ આખી જુદી છે. દાદા કહે ને કે અંદરથી તમારે એનઓસી મળવું જોઈએ. એટલે શું? અંદરથી એટલે શું? પણ એ તો હું તમને પૂછું, ક્યાં તમે વાંચ્યું આવું? હવે આ ઓડિયોમાં બધું અડધું સંભળાયું એટલે આમ કે એનઓસી તમને અંદરથી તમારા મન વચન કાયાના અંદરથી તમને એનઓસી મળવી જોઈએ. નહીં ને, એવું નહીં. મન વચન કયા શુદ્ધ થવાના છે. આ પરમાણુ છે ને, પૂતગલ પરમાણુ ચોખ્ખા કરવાના છે. ઇસેન્શિયલી કશાયનું આવરણ તોડવાનું છે, બીજું કઈ નથી. ઓકે. હા, એટલે એટલો ભાગ, એટલે પ્રકૃતિને શુદ્ધ કરવી, પૂતગલને શુદ્ધ કરવું, એટલે કશાય રહિત કરવું. દેટ ઇઝ જે ભાગ બાકી હોય શુદ્ધિકરણનો, તો એટલો ભાગ છે. શુદ્ધાત્મા તો શુદ્ધ છે જ. પણ મેં આ પૂતગલ ફાઇલ નંબર 1 ઊભી કરેલી છે. આપણે કર્મ ચાર્જ કર્યો છે ને, એટલે હવે આપણે એ પૂતગલ પરમાણુને ચોખ્ખા કરવાના છે. એટલે પરમાણુ કઈ રીતે? તો કે આ રીતે કે કશાયના ભાગથી જે આવરણ ભાગનું નીકળી જાય, પછી તો ઓલો જે છે એની મેં તે ચોખ્ખા થઈ ગયા, એનો ટાઈમ પાકશે એટલે ખરી પડશે. તીર્થંકરને શરીર તો છે, વાણી છે, બધું જ છે, પણ એ શુદ્ધ થયેલા છે, એટલે એનો આયુષ્યકરણ પૂરું થશે ત્યારે ખરી પડશે. પણ જે આવરણનો ભાગ છે આખો નીકળી ગયો. એટલે આપણે આ જે ડિસ્ચાર્જ કસાયને જ ચોખ્ખા કરવાના છે, ડિસ્ચાર્જ મોને જ ચોખ્ખા કરવાના છે, બીજું કઈ નથી કરવાનું. અંદરથી એનઓસી મળવું એટલે હા, અંદરથી આપણું એમ આ પ્રકૃતિનો ભાગ ચોખ્ખો થવો જોઈએ. તમે આજ્ઞા શેના માટે પાડો છો? વ્યવહાર વિતરાગ રહેવા માટે જ ને. હા, વિતરાગ રહેવા માટે. હા, વિતરાગ રાગદ્વેષ કાઢવા માટે ને. રાગદ્વેષ થવાની જગ્યાએ રાગદ્વેષ નથી થતા. શહેરમાં છે રાગદ્વેષ. હાલો, નકામો માણસ છે, દ્વેષ ઉભો છે. ના, ફાઇલ છે એટલે દ્વેષ તૂટી ગયો ને. હા, એટલે એ આજ્ઞા એ વિતરાગ કરવા માટે છે, રાગદ્વેષ તોડવા માટે છે. રાગદ્વેષ એટલે બીજું કઈ નહીં. રાગદ્વેષને થોડું વધારે એલાબોરેટ કરીએ, એક્સપાન્ડ કરીએ તો ક્રોધ, માનમાં આ લોકોને જ રાગદ્વેષ કીધા છે. ક્રોધ, માન ને દ્વેષમાં જાય, લોભ, કપટ રાગમાં જાય. એટલે એટલો ભાગ ચોખ્ખો કરવાનો છે ડિસ્ચાર્જ. પણ એ શુદ્ધિકરણ, પરમાણુ શુદ્ધિકરણ તો માગશે ને. પરમાણુ શુદ્ધિકરણ ત્યાં એટલે તમારી જેમ તમે જે કઈ તમે વાંચ્યું કે સાંભળ્યું, બસ એ ફાઇલ નંબર 1 નો ક્લેમ નીકળી ગયો. પછી પ્રકૃતિ ચોખ્ખી થઈ ગઈ એટલે પ્રકૃતિ એની માટે ખરી પડશે. પછી દાદા ભગવાને બી કીધું હતું કે તમે તો, દાદા ભગવાન શું કે તમે એટલે દાદા આ પૂતગલ આપણને શું કે છે, એવું દાદા ભગવાન શું કે છે કે આ પૂતગલ શું કે છે કે તમે તો શુદ્ધાત્મા થયા, પણ તમે હવે અમને ચોખ્ખા કરો, કારણ કે તમે અમને જ મેલા કરો. એટલે હું નામધારી હતું ત્યારે કર્મ ચાર્જ કરેલું, પૂતગલ બનાવ્યું, તો હવે હું તમે આત્મા થઈ ગયો, હું શુદ્ધાત્મા. પણ આ પૂતગલ આ બાકી છે તે ત્યાં લબાચો ઉભો કર્યો, તેનું શું? એના જેવું છે. તમે એક મકાનમાં રહેતા હો, પછી તમે એ બદલવાનું નક્કી કરો, એ છોડીને બીજી મકાનમાં જાઓ, એને વેચી દો, તો ઓલો કે ને ભાઈ તમે મકાન તો આપ્યું, પણ આટલું સાફ કરીને આપો મને. ભાડવા આપણે ભાડે રહેતા ત્યાં ને મકાન માલિક ધંધુ કર્યું, ભાડે રહ્યા હતા, હવે આટલું ભાડે તમારું મકાન સાફ કરો, પછી અમે તમારું ડિપોઝિટ આપીશું તમને. ત્યાં સુધી તમે છોડશું નહીં. એટલે આવા મન વચન કાય એવું કે છે હવે આ પરમાણુ તે જ ચાર્જ કરેલા છે, અને હવે તમે જ બધું એને ચોખ્ખું કરી આપો, પછી એ છૂટા થશે. બરાબર. એટલે પછી મન વચન કાયનો ક્લેમ નહીં રહે, ફાઇલ નંબર 1 નો. મન વચન કાયનો ક્લેમ નહીં રહે. બસ આજ જાણ્યું હતું. કે આપણે આ પરમાણુ આ આજ્ઞાથી, આ સમજથી આપણે એને ચોખ્ખા જ કરી રહ્યા છે. કે ભૂલો થઈ હતી ત્યારે પણ, એટલે આમ જોવા જઈએ તો સંજોગો બધા ભૂલો થઈ હતી, તો એ પ્રકૃતિ પણ, દાદા કે ને પ્રકૃતિ પણ સહજ છે ને આત્મા પણ સહજ છે, પણ આ વચલો ભાગ છે એનાથી આખી પ્રકૃતિ પાછી બંધાય, એટલે આ સહજ થવું જોઈએ ને.
આ આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી આપણે અંતરનું આ બધું કશાયનો ભાગ આખો સહજ થઈ જશે. એ જુદું પાછું. જો સહજતા જુદી, આ શુદ્ધિકરણ જુદી, અને આ ક્લીનિંગ જુદો, બધું જુદું જુદું છે. જોજો. તો સહજતા એટલે પ્રકૃતિ સહજ એટલે ચોખ્ખું નહીં? એટલે એ અમુક ભાગ આડાઈનો, પકડનો, ધાર્યું કરાવવાનો ભાગ નીકળે ત્યારે જ પ્રકૃતિ સહજ થાય. સહજ એટલે સંજોગો પ્રમાણે ફ્લો થાય. અહીંયા બેસ તો અહીંયા બેસ, આ ખાવાનું મળે તો આ ખાવાનું મળે, દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી આપણને અસર ના થાય, એને સહજ કહેવાય. મન વચન કાય નહીં આપને જેવી સહજતા પ્રાપ્ત થાય. ઓકે. એટલે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, આ ડિસ્ચાર્જ બુદ્ધિ, અપેક્ષા અને આ બધો ભાગ જે છે જેમ જેમ ઓગળતો જશે એને પછી એ બી સહજ થશે. પ્રાકૃતિક સહજતાની વાત છે. તો એ સહજતાને પણ આપણે જોઈ લેશું, જાણી લેશું એટલે એ પણ ખરી પડશે એવું? શું યાર? તો તમે કહો છો કે સહજતા જુદું અને ચોખ્ખું થવું પ્રકૃતિનું જુદું એટલે? એટલે પ્રકૃતિ ચોખ્ખી થશે એ તો મેં પહેલા જ કીધું કે જેમ જેમ બુદ્ધિ, ડિસ્ચાર્જ બુદ્ધિ ને અહંકાર ઓગળશે એટલે પ્રકૃતિ સહજ થશે, એની ના ને. હા, તો સહજતા એટલે ચોખ્ખી નહીં? એટલે એટલો ભાગ ચોખ્ખો થાય ત્યારે જ સહજ થાય. પણ ચોખ્ખાઈમાં ઘણી બધી વસ્તુ આવે. મારું કપટે આવે, મારું લોભે આવે, ક્રોધે આવે, બધું આવે. ત્યારે 4 કસાય આવે. મારામાં ક્રોધ હોય પણ મારો બુદ્ધિનો ડખો ના હોય તો હું છોડી બી દઉં વાતને. પણ એ અમુક લેવલ સુધી સહજ થાય. એટલે જયારે આ ચોખ્ખી થશે ને, જેમ જેમ ડિસ્ચાર્જ કસાય ઓછા થાય એટલે સહજતા તો આવશે જ, એની મેં આવશે, એ આવશે. કસાય મંદ થાય એટલે સહજતા ઓટોમેટિકલી આવશે. તમારો અવાજ બી નથી આવતો, મને લાગે તમારે વિડીયો બંધ કરવો પડશે. અવાજ આવ્યો હવે? હા, અવાજ આવ્યો. હવે અવાજ આવ્યો છે? આવે છે. પુણ્યનંદી, હવે અનુભવ કેવો થાય છે? કેમ ઠરી જઈએ છે તો એ એક પ્રકારનું આપણું જ્ઞાનથી ઠરી રહ્યા છે ને, એનો જ કહેવાય ને? હા, એ તો કેમ પોતાને જ ખબર પડે ને. હા, એટલે આ ટેમ્પરરી, એટલે ક્યારેક એમ થાય કે આ ઠરી ગયા છે, આમ અંદરથી આમ આપણને આમ હાશ લાગે છે, તો એ જ્ઞાનનો રિઝલ્ટ છે ને, સમજ રિઝલ્ટ છે ને. હા હા હા, એ જ હશે ને. હા, બુદ્ધિથી બી હોય પણ લગભગ બુદ્ધિ નહીં હોય. હા, માણસ બે રીતે ઠરી જાય, બુદ્ધિથી બી ઠરી શકે છે, હા, જ્ઞાનથી બી ઠરી શકે છે. બરાબર. લગભગ બુદ્ધિ ભાગ નહીં હોય તમારા કેસમાં, જ્ઞાનનો જ ભાગ હશે. બરાબર. ઓકે, ક્લિયર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાજી. આપણો સમય થઈ ગયો છે તો આપણે પૂરું કરીએ. કોઈ પ્રશ્ન નથી આગળ? ઓકે. અમીબેન, તમે ત્રિમંત્ર ફોલો કરજો. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો વરિયંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહે સૌ સાહુણમ, નમો લોહે સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ ભાવપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સવેસેન, મંગલાણં ચ સવેસેમ, પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનંદજી. અમીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્મા. હવે પછીનો સત્સંગ 4:30 વાગે કીર્તન ભક્તિ અને આરતી રહેશે. બધા મહાત્મા